天在蒙处理公告的一种重视了，还有。हाँ सुनो, हमको मत निकालो, ये भैया को निकालो, एकदम मुच्चा उच्च रहने की तरह निकालो। एडिटिंग करना पड़ेगा फिर। అందుకే వెళ్ళలేదు ఆ వాతావరణంకి. అరే మా బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్
5 సద్గురుపత్యోపచార పూజ ప్రారంభమవుతుంది. ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళకి కూర్చోవలసింది. 5 భక్తులు మరికొన్ని నిమిషాలలో ओम श्री अखंडानंद महर्षि स्वाहा। ओम श्री सच्चिदानंद योगीश्वराय स्वाहा। ओम ओम आगमार्थं तु
దేవానాం దేవానాం గమనార్థంతు పర్వాలేదు నేను ఎవరైనా చూసుకుంటాం బయటికి ఆ? మీరు ఒక్కరే. ఏ? కూర్చో. రండి, కూర్చో. చెప్పండి ఊతస్వాం అదస్వాం స్థాపయామధ్య పాపరామధ్య మదజ్ఞాన జ్ఞానం అపాగురు అపాద్గురు ఓం ఓం అపసర్పంతు హే అపదద్వస్తు భూతశా సర్వేషాం భూమిభారత సర్వేషాం నియోజన బ్రహ్మకర్మ సమారవే స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం కేశవాయ స్వాహ చిన్నది దొరుకుతుంది వెనక్కి పెట్టు అక్కడ పెట్టు చెప్పండి ఓం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ఓం ఓం గజవక్త్రం గజవక్త్రం కులశ్రేష్టం కులశ్రేష్టం సంగతోమర భూషితం పాశాంకుశ పాశాం దేవం ధరం దేవం ఉమాసుతం శోక వినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. హరి ఓం చెప్పండి ఓం గజాననాయ నమః. దీపం వెలిగించండి. లేకపోతే జల వచ్చిన తర్వాత దీపం వెలిగించిన తర్వాత ఓం గజాననాయ నమః. ఓం గజానాయ నమః. దీపం దర్శ గణేష్ గణేష్ ఓం విఘ్నహంత్రే నమః. విఘ్నహంత్రే నమః. ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదాయకాయ నమః. సిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. పుష్పాణి పూజయామి. పుష్పాని పూజయామి. ఓం భువః భువః. ఓం ఓం సువః సువః. ఓం ఓం మనః మనః. ఓం ఓం జ్ఞానః జ్ఞానః. ఓం ఓం తపః తపః. ఓం ఓం సత్యం. ఆపోజ్ఞాతి రసోమృతం బ్రహ్మభో భువః సువః. ఓం సంవత్సరే శుభాయనే సువర్తౌ శుభమాసే శుభవాసరే బుధవార దినంయాం పూజాం అహం కరిష్యే. అహం కరిష్యే. తదంగా తదంగా కలశకొని పైన రాయండి. సమాసిత. మూలే తత్ర మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ స్థితో బ్రహ్మ. మధ్యే సర్వే సప్తద్వీప వసుంధర ఋగ్వేదో యజుర్వేద సైతామ సర్వే కలశాంబు సమాసిత ఆయాంతు గురుపూజార్థం గురుదక్షయ రమణే చైవ గోదావరి సరస్వతి తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమి భాగీరథీ చ విఖ్యాత పంచగంగా ఆ నీరు చల్లండి. వేదాంత సార శ్రీమద్ వేదాంత సచ్చిదానంద రహిత సచ్చిదానంద రహిత ప్రకృతిద్వాతీత ప్రకృతిద్వాతీత నిరామయ నిరామయ నిర్గుణ నిర్గుణ నిర్వికల్ప నిర్వికల్ప నిరంజన నిరంజన అసలీయ అసలీయ అచల పరిపూర్ణ అచల పరిపూర్ణ స్వరూప స్వరూప లోకాధార దేవవృంద మునిజన హృదయానంద సేవ్యమాణ మహారాజరాజ వందిత కేవలాత్మస్వరూప మమ గురు ప్రియ సంగాణతాహ్వయ సద్గురు స్వామినః మనసా ధ్యానం కరోమి. ఒక నిమిషం. ధ్యానం సమర్పయామి. ఓం సద్గురువే నమః. ఓం సద్గురువే నమః. ఆవాహనం సమర్పయామి. ఆవాహనం ఓం సద్గురువే నమః.
శుద్ధోదక స్నానం చేయాలి. శంభో ఓం శ్రీ సద్గురువే నమః. వస్త్రం సమర్పయామి. పవిత్రం ప్రజాపతయే సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమధ్యం ప్రతిమంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం ఫలమస్తు తేయః ఇది యజ్ఞోపవీతం ధారయామి. నమః. ఆభరణం సమర్పయామి. ఆభరణార్థం పుష్పమాలాం సమర్పయామి. చందనం సమర్పయామి. ఓం సద్గురవే నమః. పుష్పం సమర్పయామి. ఇంకో దీపం సమర్పయామి. ఒకటే ఓం సద్గురవే నమః. అభిషేకం సమర్పయామి. అభిషేకం సమర్పయామి. శంభో ఎందుకంటే పళ్ళని పెట్టాలి కదా కొంచెం వచ్చారండి సీరియస్ సమర్పయామి. ఇప్పుడు పెట్టండి. ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ. ఓం ఉదారాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. హరి ఓం. అష్టోత్తర పుష్పాలను అక్షతలు పట్టుకొని రాయడం అక్షతలు పట్టుకొని ఓం అనంతానంద నామకాయ నమః. ఓం నిస్సంగాయ నమః. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఓం జగన్నాథ పాత్రాయ నమః. ఓం జయరామని సంకతాయ నమః. ఓం మోహాయ నమః. ఓం నాశనాయ నమః. ఓం నమాయ నమః. ఓం నిరంకారాయ నమః. ఓం తమాశ్రీ నమః. ఓం నమః నమః. ఓం నిత్యాయ నమః. ఓం నమః నమః. ఓం భద్రాయ నమః. ఓం అధ్యాత్మనాయ నమః. ఓం భగవాయ నమః. ఓం భగవంతాయ నమః. ఓం భూతభూమాయ నమః. ఓం నిత్యదృష్టాయ నమః. ఓం శ్రీరామయాయ నమః. ఓం శ్రీరామని తిరువాసాయ నమః. ఓం ధ్యానారూఢాయ నమః. ఓం శుచివ్రతాయ నమః. ఓం భూగర్భతీత సంసేవినే నమః. ఓం గుహావస్థిత భూతే నమః. ఓం బ్రహ్మనిష్ఠాయ నమః. ఓం మౌనినే నమః. ఓం సమాధిష్ఠాయ నమః. ఓం దయాపరాయ నమః. ఓం దానసప్తమస్తకాయ నమః. పాత్రాయ నమః. ఓం మణిపాత్రమీక్షకాయ నమః. ఓం ఆంధ్రమాతృతప ప్రాప్తాయ నమః. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం నైష్ఠికాయ నమః. ఓం జ్ఞానకాయ నమః. ఓం ధీమతే నమః. ఓం ఆంధ్ర నిసంగ విధానకాయ నమః. ఓం శ్రీ ప్రదాయకాయ నమః. ఓం ముక్తి ప్రదాయకాయ నమః.
निर्गुणाय नमः ओम पराय नमः ओम अनेकंदने मात्रे नमः ओम शास्त्रज्ञाय नमः ओम शास्त्रसमताय नमः ओम शुष्कवाद तमो भास्कराय नमः ओम निजबोध सुधाकराय नमः ओम कर्मसेतवे नमः ओम त्रिगुणातीताय नमः ओम लोकोद्धरण तत्पराय नमः ओम संस्कृत भाषा उदाराय नमः ओम अद्वैत सिद्धांत बोधकाय नमः ओम सर्वमत समन्वयाय नमः ओम अत्यदर्शकाय नमः ओम सांख्य योगिने नमः ओम सन्यासिने नमः ओम साधु दर्शकाय नमः ओम स्वत्रकृष्णे नमः ओम तत्दृष्टांत प्रबोधकाय नमः ओम ज्ञान सूर्याय नमः ओम स्वयं ज्योतिषे नमः ओम तेजस्विने नमः ओम नियतात्माय नमः ओम जगदीश्वराय नमः ओम श्री कृष्ण जनार्दनाय नमः ओम श्री भगवद्गीता स्वरूपिणे नमः ओम सर्वाभीष्ट वरप्रदाय नमः ओम श्री सद्गुरुवे नमः ఇది అష్టోత్తరశతనామావళి సమాప్త చెప్పండి ఓం దేవి సాక్షిణి బ్రహ్మణే నమః ఓం పృథివ్యాత్మకం గంధ తన్మాత్ర ప్రకృత్యానందాత్మని గురుదేవాయ నమః పృథివ్యాత్మకం గంధం సమర్పయామి ओम देवात्मने रूपधमर्पयामि ओम आवात्मने रसतन्मात्रा प्रकृत्यानंदात्मने श्री गुरुदेवाय नमः आवात्मकं फलं समर्पयामि ओम ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम मध्य मध्य पानीयं समर्पयामि ఇప్పుడు తక్కువ తీసుకో మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం ఓం మంగళజ్యోతి జ్యోతి పరాత్పర జ్యోతి జ్యోతి స్వయం జ్యోతి ఆత్మజ్యోతి విమోచన ఓం ఆత్మజ్యోతి మనోజ్యోతి జగద్భక్తజ్యోతి సవాచార్యంకర జ్యోతి సహజ్యోతి శివముంజతే హరి ఓం తత్సత్ ఓం నీళ్ళు చూపించి నిలబడండి నిత్య పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతు ప్రదక్షిణ పదే పదే ఓం పుణ్యోహం పుణ్యకర్మోహం పుణ్యాత్మా పుణ్యసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష గురుప్రభో ఇది ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి నమస్కారం చేసుకోండి ఓం సర్వాత్మని సర్వతన్మాత్రా ప్రకృత్యానందాత్మని శ్రీ గురుదేవాయ నమః సర్వాత్మకాన్ సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి జై గురుదేవ్ ఓం వాసనాక్షయ మనోనాశ తత్వజ్ఞానభ్యాసవశాత్ జ్ఞానప్రాప్తి తపశ్సిద్ధి సర్వసమత్వం దుఃఖ నివృత్తి సుఖావిర్భవః ఇత్యేత పంచ ప్రయోజన సిద్ధి భూయాత్ ఇప్పుడు శాంతి మంత్రం చెప్పండి ఓం కాళీ వర్షతు పర్జన్యః పృథ్వీ సస్యశాలినీ దేశోయం శోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా ఓం అధునా సదనా సంతు జీవంతు శరదాం శతం ఓం సర్వేత్ర సుఖినః సంతు సర్వే సంతు నిరామయా సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖమాప్నుయాత్ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యः
तत्सर्वं क्षम्यतां देव नमोस्तुते गुरुप्रभो ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गुरुप्रभो क्षम्यतां यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदास्तु मे ओम शांति 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 ओम श्री जगद्गुरु शंकर भगवत्पादुలకు ओम श्री असंगानंद महर्षुలకు ओम श्री सच्चिदानंद योगीश्वरुలకు ओम श्रीमती आदिलक्ष्मी मातకు ओम श्री विवेकानंदలకు ओम श्री गांधी महात्मुనకు ओम श्री चैतन्य प्रभुనకు ओम श्री प्रभुपादुలకు ओम श्री रामकृष्ण प्रभुనకు ओम श्री शारदा मातకు ओम श्री सुभाष चंद्र बोसకు ओम प्रभुपादुలకు गुरु गोविंद सिंहुనకు యేసు ప్రభువునకు భక్తులందరికీ జై माणिक्यमकुटकाराजित इंद्रगोपा परिक्षिप्त स्मरतोणामदलिका गोलगुल्पा गोर्मपुष्पा जयष्टा सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वरहस्ता शिवस्वाधीनवल्लभ सुमेरुन्द्रमग्रस्ता श्रीमन्नगरनायक चिन्तामणि गुणतस्था पञ्चब्रह्माण्डस्थितः महापद्माण्डविशिष्टा कदम्बवनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवशिखरसङ्घाता समयन्तवैभवा बण्डासुरवधियुक्ता शक्तिसेना समन्विता सदेशदासा कोटिकोटिविरावृता चक्रराजरधारूढा सर्वायुध परिष्कृता ये चक्ररधारूढा मन्त्रिणी परिसेविता ये चक्ररधारूढा दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालमालिनी वासुदेवैर्प्रभारमध्यगा भण्डसैन्यवधूयुता शक्तिविक्रमहर्षिता निशुल्कपाणहरणा वाराणीयनन्दिता कामेश्वरं कालोका कल्पिता श्रीगणेश्वर महागणेश निर्वन्ना विघ्नहर्त्रवरणे महाकाशुपदष्टाग्नि नित्यकासुरदैनिका कामेश्वराद्रनिस्वरूपिणा सूर्यपमुखाम्बुज कण्ठानकण्ठगीता मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटे कथापन्ना कट्यदुर्भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटकलेवर पुरामुद्यगिनी अमूलसमयां सदा समयाधारतन्वया मूलाधारे गिरया नमन्दिरेदिनी मणिपूरान्तर्विदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरागस्ता रुद्रग्रन्थिविभेदिनी भक्तप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या वयापः शाम्भवी शारदा राज्ञा सर्वाणि शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिर्वाणा कातोदरी शान्तिमती निराधारणनिर्मला निर्लेपा निर्मला निराकराकुला निर्गुणा निश्चला शान्ता निष्कमानयुक्तफला नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रय नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्करुणा निरलङ्का निरुपाधिमहेश्वर नीरागराग मदने निर्महामहामन्त्री निष्पापभावनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमने निर्लोभालोभनाशिनी निःशंशया संशयज्ञे निर्भयोपनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा वेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमदने निष्क्रिया निष्परिग्रह निष्ठुराणि नष्टिका दुर्गमा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्रे समप्रदा सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सत्यप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रा सर्वहरे महादेवी महालक्ष्मी गुणप्रिया महारूपा महापूज्या महापादकनाशिनी महामाया महासत्या महाशक्ति महारथी महाभोगा महेश्वर्या
महाभूषित महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी चंद्रकलाधर चराचर जगन्नाथ चक्रराज निकेतन पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा पंचप्रेतासनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंद विज्ञान घन रूपिणी ध्यानरूपा धर्मा धर्मा विश्वरूपा जागरणी स्वप्ति तेजसा सदा शिवा संप्रदा पंचवृत्तपारायण भानुमंडल मध्यस्थ भैरवी भगमालिनी पद्मासन भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेषण शोत्पन्न सहस्रेश वदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आपृक्कल जननी वैमसानुदारिणी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षेत्रदेवी निर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्पिता विजया वंशारुजनवत्सला वाक्यली वाक्यसी वायुमण्डलवासिनी भक्तिमातुर्विमोचनी साक्षात् सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्नि संतप्ता संप्रदानचन्द्रिका तरणि तापसाराध्या तमिन्द्रपुङ्गः चित्स्वरूपिणी स्वापिनी नन्दवियूत ब्रह्माज्ञानस्य संतते परा प्रत्यक्षे रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वरी प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृंगाररस संपूर्णा जयाधरस्थिता ओषधोधनप्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिण्यम्ब स्वरूपिणी मणिपुराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्राधिका यदोपेता ढामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मासनिष्ठा गुणान्वितमानसा समस्त भक्त सुखदा राकिण्यम्ब स्वरूपिणी स्वादिष्ठाना मुजगता चतुर्भुजा मनोहरा सोहिनी मूलाधारा मुजारूढ़ा पंचवक्रास्तु संस्थिता अंशादि प्रयाणावतारिणी सेविता मुद्गोदना चक्रसिद्धा साकिन्यम्ब स्वरूपिणी आयना चक्रात् निलया शुक्लवर्णा विराजना मध्य संस्थान सर्वव्याधि प्रशमनी सर्वमुज्जनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायी कालान्त्री कमलाक्षी विशेषा ताम्बूलमुदितमुखी दारिणी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृगायी मित्ररूपिणी नित्ययुक्ता भक्तिनिधि ज्ञाननिधिनेश्वरी मैत्रायुवासनालभ्या महाप्रलय साक्षी पराशा मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी ॐ हरिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सद्गुरुगीतामृतस्नानं हरिः ॐ तत्सत् ॐ श्रीमद्भगवद्गीताशास्त्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीधर्मोऽनपरित्यज्यमामेकं शरणं व्रजेति शक्तिः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चितैः सर्वदुर्गाणि प्रसादादरिष्यसीति किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमित्याधनार्थे श्रीकृष्णपरमात्मा प्रीत्यर्थे गीतापारायणे जपे वियोगः हरिः ॐ तत्सत् ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वृंदावन बिहारी लाल की। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। इसका अर्थ सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है वो आनंद है।
आनंद स्वरूपाय सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का शुभ करने के लिए जिनका जन्म हुआ। तापत्रय, ताप माने कष्ट, त्रय विनाशाय, दुख को नाश करने के लिए। कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण आपको प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भागवत के श्लोक को सुनने से, माधव 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 नाम करने से, ये माघ महीने के सुबह मुहूर्त में, आप लोग का भी माघ महीना आज से लग गया, हम लोग का 15 दिन पहले लगा। माघ महीना में माधव माधव नाम लेने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसलिए माधव का नाम करना चाहिए। सब महीना 12 महीना हम लोग के यहाँ पर है, आश्विन कार्तिक सब, इसमें एक महीना जो था वो बोला मुझे कोई नाम नहीं मिला। कृष्ण भगवान ने कहा मैंने तुझे अपना नाम दिया माधव। बोले माधव भगवान की जय। ये माघ मास, माघ मास अति पवित्र मास अंटे श्री कृष्ण, कृष्ण माने जो काला है। काला में क्यों है? कृष्ण का अर्थ है काला है। काला ही क्यों है भगवान? काला में सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं। एक काला दाग किसी का पड़ जाए तो उसको तिल कहते हैं, शुभम लक्षण, और सफेद दाग हो जाए तो उसको कुष्ठ कहते हैं, दरिद्र लक्षण। इसलिए कृष्ण ने काला रूप धारण किया, भगवान विष्णु ने काला रूप धारण किया, शंकर ने काला रूप धारण किया, राम ने काला रूप धारण किया। गौर भगवान का तो हम लोग पूजा ही नहीं करते हैं, हम लोग तो भगवान बोला। नारद एक बार भगवान से कहता है अरे नारायणा, ये संसार लोग मूर्ति जितना भी आपका बनाया सब काला काला कृष्ण है, आप तो गोरा है। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, भगवान गोरा है, गौर वर्ण। सत्यनारायण भगवान का देखेंगे गौर है। और भगवान शिव कैसे है? नीलकंठ महादेव, गला नीला है, लेकिन कर्पूर गौरम करुणावतार, कपूर के जैसे गोरा है भगवान। शंकर विष्णु दोनों बैठे हैं, ब्रह्मा भगवान बैठे। नारद पूछता है कि इस संसार में आप सबको काला रंग कर दिया, आप तो गौर है, गोरा है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं नारद विवाह हुआ है तुम्हारा? बोला नहीं, विवाह के बाद हर आदमी काला होता है। वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि पत्नी का रंग उसमें आ जाता है। पत्नी हरदम पति पे तनी हुई, पत्नी अंकुश लगाने के लिए नहीं, अनुशासन पालन करने के लिए पत्नी का धर्म होता है। पत्नी को धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है? पत्नी को धर्मपत्नी इसलिए कहा जाता है कि धर्म का रक्षा करना पत्नी का धर्म है। इसलिए जितने उपास, जितने पूजा पाठ है सब नारियों को दिया गया, पुरुष के पास एक भी पूजा नहीं है, क्योंकि पुरुष से कर्मपति खट के लाने का काम उसका है। तभी रत्नाकर डाकू जब बोला अपनी पत्नी को, रत्नावली को, कि क्या आप मेरा पाप ले सकते हो, तो रत्नाकर डाकू की पत्नी बोली ये मेरा काम नहीं, आपका काम है खट के लेके आके मुझे खिलाना, मेरा काम है धर्म का पालन करना। इसीलिए कहते हैं धर्म पत्नी। कर्मपति कोई कहता नहीं कि आप कर्मपति ये खट के लाना आपका काम है। लेकिन आज आधुनिक युग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर करहि एक पार। मंत्र को आवश्यकता नहीं है कलयुग में, केवल नाम संकीर्तन। इसीलिए गोविंदा गोविंदा का नाम करते दक्षिण भारत, बंगाल में हरे कृष्ण हरे राम, और आप उधर चले जाइए तो विठला विठला पांडुरंगा विठला, और आप अगर चले जाएंगे वृंदावन तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। केवल नाम संकीर्तन, नाम की महिमा का ही काम है। राम राम एटी, जो राम माने सब में रम जाए, जो सब में मिल जाए वो राम कहते हैं। और हनुमान का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण। हनुमान हनन करे जो अभिमान का, उसे हनुमान कहते हैं, माने घमंड का। राम को कहाँ रहना चाहिए? हृदयाल वासनम श्री रामचंद्राय। वाल्मीकि ऋषि से पूछा गया राम भगवान कहाँ रहेंगे? राम ने कहा, तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा हृदय में वास करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका हृदय निर्मल है उसमें राम है। इसलिए राम को घर में आप स्थान दीजिए, सिंहासन पर बैठा हुआ राम। वनवासी राम का फोटो घर में नहीं रखना, चित्र ऐसा नहीं रखना जिसमें युद्ध का चित्र है, जहां पर महाभारत का कोई हो रहा है, अर्जुन बैठा है और भगवान कृष्ण उसको ऐसा करने से, ऐसे तस्वीर की पूजा करने से घर में हरदम अशांति का वातावरण है। श्री कृष्ण का ऐसा फोटो रखिए जिनके संग राधा रानी विराजमान, बांसुरी बजाते हुए। कृष्ण भगवान के मंदिर में कोई कामना पूरा नहीं हो रहा है तो आप बांसुरी का दान कर दीजिए। चांदी की बांसुरी नहीं मिलेगा तो बांस की बांसुरी का दान कीजिए, आपको प्रिय चीज की प्राप्ति होगी। वृंदावन बिहारी लाल की कहते यज्ञ दान तप स्वाध्याय निरतो भवेत, ऐसे भी श्रुति युक्तम सत्य धर्म सनातनः। 90
1987 से इस आश्रम में आया। बहुत छोटा था, श्रीनिवास राव जी मुझे गीता का ज्ञान देते थे। उसके बाद कुछ शिष्यों को लेकर आया मैं, और गुरुजी के सानिध्य में, और इनके पिताजी थे, उन्होंने आकांक्षा की कि पुराण का पाठ किया जाए, और मैंने इस क्षेत्र में देवी भागवत पुराण का पाठ किया। घनघोर वर्षा हो रही थी, बहुत से लोग थे, और उस वर्षा में भी यज्ञ अनुष्ठान का जो यज्ञ कुंड बाहर रखा गया था उसमें आग निकल गई। बोल बिहार 56 भोग हम लोग किए हैं। 56 भोग का आवेदन किया था। कहते हैं जो मंदिर पुराना है लोग उसको जाते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम लोग के घर में जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे कोई मिलने आता तो बड़ा आनंद से वो प्रेम करते हैं। इसलिए जितने पुराने मंदिर में जाना चाहिए, आशीर्वाद वहीं से मिलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। नया मंदिर बना, भीड़ हो गया, लेकिन जीर्ण स्थान, जीर्णोद्धार करने वाला मंदिर में अगर आप स्नान करेंगे तो आपके पाप ऐसे कट जाएंगे। मंदिर में जाना क्यों जरूरी है? मंदिर में इसलिए जाना जरूरी है कि आप मंदिर में जाएंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो समाप्त हो जाएगी, और कोशिकाओं का आप में जागरण होगा। जो भूत के पिशाच ग्रह चक्कर है वो भी आपको छोड़ के चले। बिहारी हाल भागवत पुराण जितने भी हम लोग के पास संगठन है, सब में कहा गया, किसी न किसी व्यक्ति को विशेष रूप दिया गया। हर पुराने 18 पुराण में हर एक पुरुष पुराण प्रधान है। व्यास मुनि ने कहीं लिखा है नारद पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, सूर्य पुराण, विष्णु पुराण। उसके बाद विष्णु के जितने रूप आए हैं, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे करके पुरुष प्रधान पुराण। व्यास मुनि जब हिमालय के तराई में जाके बर्फीले चोटी में बैठे थे तो उनका हाजमा खराब हो गया, यानी पेट खराब हो गया। ऐसी अवस्था में ठंड में कांप रही थी, छोटी सी बालिका पानी लेके उठा और उसको पानी लाके भी ब्रश का सेवन करे। महाराज आश्चर्यचकित, इस ठंड में तपस्वी होकर भी उसे ठंड लग रहा है। कहते तपस्वी उठा, लेकिन इसमें छोटी सी बालिका आकर पानी दे रही है उसे पीने के लिए। पानी पिया और बोला आप इस ठंड में कहां से आए? बोला व्यास मुनि आपने पुरुष प्रधान पुराण का लेखन किया है, लेकिन जो मैं शक्ति हूं मेरा कोई शक्ति है। बोला आप कौन है? बोला मैं जगत की जागधात्री आदि शक्ति दुर्गा भवानी। बोल महारानी दुर्गा महारानी की। जिन्होंने उत्पत्ति किया उसी को भूल गया। नारी उत्पत्ति का कारण है, नारी जन्मदात्री है, इसलिए श्रद्धा श्रेष्ठ, और इस पृथ्वी पर भारत भूमि में सबसे ज्यादा सम्मान है। जो नारियों का अपमान करते हैं शुक्र उसका चला जाता है, शुक्र ग्रह जिसके चला जाता है सुख शांति विनष्ट हो जाती है। जो नारी का अपमान करता है शनि उस पे छा जाता है। जो नारी का अपमान करता है गुरु उसके पास नहीं रहता। जब गुरु शुक्र शनि नहीं रहेंगे तो बाकी ग्रह का क्या साथ देंगे? इसलिए माँ बहन माताओं पत्नियों का सम्मान करना चाहिए। नारी का जो सम्मान करता है, नर के बाद नारी, नारी ई का शब्द क्यों है? ईश्वर की उत्पत्ति हुए नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करने वाली एकमात्र आदि शक्ति है। हम लोग घर में आजकल आधुनिकता है, पौराणिकता को लोग नहीं लेते हैं। प्रवचन बहुत जगह होता है, टीवी चालू कीजिए, ब्रश करने के पहले बाबा लोग आ जाते हैं और ऐसा ऐसा प्रवचन करते, एक बाबा एक चीज बताएंगे, एक बाबा एक चीज बताएंगे। हम लोग बड़ा विस्मित हो जाते हैं। ऐसे में जो शास्त्र का पद्धति है, अद्वैत का पद्धति है, उस पद्धति को लेके एक ब्रह्म को मानना है। एक ब्रह्म, भगवान कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ब्रह्म जो है सर्वेश्वर है, कि मैंने केवल तुझको जाना, तुझको माना और तेरे सिवा किसी को नहीं जाना। जो एक ब्रह्म की निष्ठा से पूजा करते हैं वो नंदा दीप जलाएंगे, यानी ऐसा लौ जलेगा। और जो बहुत से भगवान रखे हैं सबके प्रति श्रद्धा करते हैं, अम्मावाड़ा का भी पूजा करते हैं, वेंकटेश्वर का भी पूजा करते हैं, शंकर, उसको ऐसा दीप लगाना चाहिए जोड़ा, ताकि हम लोग परिवार वाला है। और जो ब्रह्मचारी वो नंदा दीप जलाएगा, यानी एक ब्रह्म पर ब्रह्म एक ही पे विश्वास है। और जो हम लोग गृहस्थ हैं उनको ऐसा कि भगवान इस संसार धर्म का पालन करते हुए तेरे शरण में आए, माने पति पत्नी दोनों जोड़ा वाला मिलता है। उत्तर तरफ रखना है कैलाश पर्वत है, भगवान शंकर के सब परिवार प्रसन्न होते हैं। पूरब तरफ रखना है जितने भी देवी देवता हैं पूरब तरफ। दक्षिण तरफ रखेंगे तो प्रेत आत्माओं का वास होगा, क्योंकि यमलोक दक्षिण की तरफ। अगर आप पश्चिम की तरफ रखेंगे तो पितरों का नाश होगा, क्योंकि शक्ति का प्रतीक है। अगर वहां आग दिखाए ना तो आग। अपने घर में
वास्तु के अनुसार हम लोग रहने वाले हैं, नाना प्रकार का कष्ट है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट से परेशान हो, कोई सुखी नहीं है। भगवान श्री राम भी सुखी नहीं थे। जब पत्नी मिली तो बच्चे नहीं थे, जब बच्चे मिले तो पत्नी चली गई, जब बच्चे आए तो वो भूल को चले गए। भगवान श्री राम भी सुखी नहीं है, श्री कृष्ण भी सुखी नहीं है। इतना युद्ध कराया, इतना ये किया, अंत में जब वो प्रयागराज में बैठे थे उसके सामने उसके पुत्र आपस में लड़के ही थे। कृष्ण का वंशज नहीं रहा। यदुवंशी जो है, यादव जो बोलता है, यदु तो भगवान गोप और माँ यशोदा ने तो पालन करता है, धर्मपिता है, यादव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी है। एक बार सूर्य भगवान गया, बोला राम भगवान मेरे इसमें जन्म लिया है। चंद्र चला गया विष्णु से युद्ध करने के लिए, बोला आपसे हम युद्ध करेंगे। कैसा? वाक्पटुता का युद्ध, सम्मान का युद्ध। क्यों? इस युद्ध को इसलिए करेंगे कि आप मेरे वंश में जन्म लिया, इसलिए भगवान ने कहा कि जब कृष्ण का जन्म होगा तो चंद्र वंश में जन्म होगा। और राम भगवान ने कहा तुम्हें, तुम्हारे कुल में मैं जन्म नहीं लिया, सूर्य कुल में जन्म लिया हूं, इसलिए मेरे नाम के संग चंद्र क्या बोल सियावर रामचंद्र की। चंद्र राम ने अपने इसमें लगा लिया, राम का नाम में चंद्र नहीं था, इसलिए राम ने चंद्र का शब्द को लगा लिया। हम लोग जब भी हनुमान जी का तस्वीर रखे घर पे, वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रवचन की अवधि मेरे लिए थी, मैं थोड़ा विलंब हो गया। आप हनुमान जी को अग्नि कोण में कभी मत लगाना, आपके घर में आग लग सकता है। हनुमान जी का भी तस्वीर है या अग्नि कोण में किसी ऐसा आग जलाने का काम कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को नहीं रखना। हनुमान जी के सामने में अगर पूछ लगा हुआ उसके सामने आप दीपक रख दिए, वो भी नहीं करना। अग्नि से भगवान को बहुत डर लगता है। वृंदावन बिहारी लाल की। चित्रकूट में आज भी एक जगह है जहां बजरंगबली ने कहा माता सीता को कि मेरा बदन जल रहा है, तो माता सीता ने तीर मारा और गंगा जल वहां से बह रहा है, भगवान सोए उस पर जल पार होके जा रही है। ऐसा अवस्था भगवान श्री हनुमान जी का है। इसलिए हनुमान जी के सामने दीपक थोड़ा दूर रखिए, 1 फुट दूर में रखिए, पूछ के पास मत रखिए। शंकर भगवान के लिंग पे जो चढ़ा है वह प्रसाद को ग्रहण न कीजिए। बहुत जन शंकर भगवान को बेलपत्र खाते हैं, बेलपत्र का सेवन करते हैं। बेलपत्र का सेवन पुरुषों को नहीं करना चाहिए, नारियों को नहीं करना चाहिए। प्रजनन की असुविधा हो जाती है, बाल बच्चे होने में तकलीफ होती है। ये शास्त्र के अनुसार, शास्त्र सरलता से समझ में आ जाए वो शास्त्र, और तो समझ में नहीं आया वो शास्त्र, और शास्त्र से आघात होता है। बिहारी लाल की। हम लोग को अपने जीवन शैली में एक चीज का पालन करना है। क्या? दोनों संध्याओं में भगवान के सामने माथा टेकना है, आप अगरबत्ती धूना ना करें। और सुबह सूर्योदय के समय उठ के स्नान अगर हो जाए तो स्नान करने के बाद कोई आहार ग्रहण कीजिए, शरीर शुद्ध कीजिए, उस पर आहार ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके आत्मा में श्री राम बैठे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे हृदय में राम है, हम में दया अगर आ गई, अब किसी पे दया करते ना, अरे उसको मार दिया, अरे वो गरीब है, ये आप में राम बैठ गया इसलिए आप में दया आई है। आप में निष्ठुरता कब आएगी? जब रावण का आप में स्वभाव आ जाएगा, तभी आप क्या करेंगे? दैत्य प्रवृत्ति के हो जाएंगे, हिंसक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। इसलिए सदैव मन में श्री राम का वास हो, घर के छत पे हनुमान का वास हो, सब सुख शांति से रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस आश्रम के सद्गुरुओं की जय, सभी भक्तों की जय। शब्दों की समीकरण, देवताओं का जो सिंहासन बनाते हैं, बहुत जन करते हैं उसको रैक में रख देते हैं ताकि उस पर कोई छाया न पड़े। बहुत से लोग नीचे पे रखते हैं ताकि उसका पूजा ठीक ढंग से। ध्यान कीजिएगा, शंकर भगवान के बगल में लक्ष्मी माँ को नहीं रखिएगा, विष्णु भगवान के बगल में दुर्गा माँ को नहीं रखिएगा। क्या कारण है? पति पत्नी के रूप में जो है उन्हीं देवी देवताओं को चित्र को रखें। क्रोध वाला चित्र को एनर्जी को पैदा करते हैं, आप में उग्रता को पैदा करेंगे। जिनको युद्ध जीतना है वो रणचंडी का पूजा करेगा, जो राम भगवान ने किया था। हमको क्या करना है? सिंह पे बैठी हुई माँ आशीर्वाद दे रही है, अगर शंकर का परिवार को रखा जाए तो सारा परिवार एक संग रहता है। मेरे घर में बहुत ही कष्ट था, तो मैंने वास्तुशास्त्र का अध्ययन करने के बाद शंकर भगवान, पार्वती, गणेश और कार्तिक बैठा हुआ एक बड़ा तस्वीर बीच में रखा, बाकी सब देवी देवता को रख दिया। मेरे घर में खरगोश के बच्चे भी हैं, बिल्ली भी आपस में खेलते हैं, कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। क्यों? और एक बार
बाहर से कोई बिल्ली बच्चा फेंक के चला गया घर के सामने, उसको लाके मेरे घर में रख दिया। मेरे घर की जो बिल्ली है उसको प्रेम से अपने पास रख ली, तो मेरी धर्मपत्नी कहती है कि ये बिल्ली बिल्ला उसको मारता क्यों नहीं, क्योंकि जो पुरुष बिल्ला होता है बच्चे लोग को मार देता है। लेकिन आएगा हम लोग सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए पशु पक्षियों में भी वैसे आचरण होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग जो अन्न खाते हैं प्रारंभ हो जाएगा। कौवा लोग को कहाँ खाना देना है? पत्थर के ऊपर देना है। कुत्ता को कहाँ खाना देना है? घर के बाहर देना है। चिड़ियाओं को अगर खाना देंगे, दाना डालेंगे, तो आपका राहु निकल जाएगा। राहु अगर निकल गया तो आपके धन संपत्ति का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए आप सबके लिए एक ही बात है कि सात्विक विचारधारा को रख के चलिए, प्रपंच में ना रहे, अपने आप को शुद्ध रखिए, देवताओं को शुद्ध रखिए। बासी फूल को रात को ही निकाल दीजिए, भगवान के सिर पर न रहे, और सुबह उठ के भगवान का पूजन कीजिए। सिर में फूल रख दिए, रात को बासी हो गया, सिर में बोझ पड़ जाता है। खास करके मूर्ति अगर घर पे है तो उसमें तो नहीं रखना चाहिए, फोटो में रखकर। इससे बड़ी पीतल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति ना रखे, नहीं तो भोजन मांगता है। लोग मंदिर तो 1000 बना देते हैं, बहुत सा मंदिर बना देते हैं, लेकिन वहां जो ब्राह्मण को रख के या किसी को रख के आहार ग्रहण नहीं करवाते। आहार नहीं ग्रहण करवाने के वास्ते वो मूर्ति जो है श्राप देता है कि प्रतिष्ठा कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब मैं आहार का भक्षभोजी भगवान का नहीं। लेकिन एक नियम है, परंपरा है। जैसे हम लोग की परंपरा है, बहुत से समय में हम लोग 12 बजे का खाना को रात को नहीं खाते, शाम को नहीं खाते 12 बजे। ऐसे ही मूर्तियों की कुछ परंपरा का सेवन करने के लिए मूर्तियों की स्थापना कर देते हैं, परंतु उसका भोजन नहीं ग्रहण करवाते। भोजन कौन बनाएगा? सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति बनाएगा, जो तामसिक चीजों का सेवन नहीं करता है। इसीलिए ब्राह्मणों को यह दायित्व दिया जाता है। जिस मंदिर में प्रातः शाम पूजा होता है, जो अति पुराना मंदिर है, उसमें अवश्य जाइए, इसलिए क्योंकि उसकी शक्ति पहले से जागृत है। इसलिए ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन बहुत से स्वयंभू लिंग भी है, ज्योतिर्लिंग में नहीं आता। अब केदार तो ज्योतिर्लिंग में आता है, पशुपतिनाथ नहीं आता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों का दर्शन करना जरूरी। जो केदार का दर्शन किया उसको पशुपतिनाथ दर्शन करना होगा, जो गंगा सागर किया उसको पूरी धाम का दर्शन करना होगा। ये आपस में था, संपर्क था। पहले लोग तीर्थ स्थान में जाते इसलिए थे ताकि जाने के वक्त उनका प्राण का त्याग हो जाए। कलयुग ने भगवान से कहा कि मुझ पे 4 लाख साल दिया, सबको 16 है, किसी को 8 है, किसी को 12 लाख साल है। भगवान ने कहा यहाँ यात्रा सुलभ हो जाएगी, आप एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जाएंगे, वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग प्रसन्न हो गया, बोला अरे वाह, ये तो सुबह आपने दे दिया मुझे ऐसा आशीर्वाद। लेकिन कलयुग को कहा गया कि विश्वासम फलदायकम। आप पूजा तो कर लिए, आपका घर में मन में विश्वास ही नहीं आया, भगवान आपको कुछ नहीं देगा। भगवान को सजा दिए, सबको बुला के खिला दिए, भोजन संपन्न हो गया, लेकिन विश्वास ही नहीं है मैं ये किया ये होगा। शंका जहां पर आया वहां शंकर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव का अर्थ होता है हरदम सबका भला करने के लिए। हम लोग हिंदी में कहते हैं कल्याण, लेकिन दक्षिण भारत में कल्याण का अर्थ विवाह होता है। हम लोग के यहाँ पर कल्याण माने शुभ मंगल करने के लिए शिव के उत्पत्ति, भगवान शंकर। और बड़ी आश्चर्य की बात होती, देवता कहाँ है? प्रवचन में भी देवता का आगमन होता है, नदियों का आगमन होता है, तीर्थों का आगमन होता है। कारण क्या है? जहां किसी को उबासी आ जाए। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण भ्रमण करने के लिए निकले। एक कन्या एक पैर में खड़े होकर तपस्या कर रही थी। उस कन्या को देखकर अर्जुन ने कहा, इतनी सुंदर कन्या, मुझसे विवाह करोगी? तो उन्होंने कहा, मैं गंधर्व की कन्या हूँ, मेरा नाम गुड़ाका है, सैकड़ों वर्ष से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वही मेरे पति हो सकता है। जाइए भगवान श्री कृष्ण से बोलो। भगवान कृष्ण वहां पर आए और आके उससे कहा, क्यों गुड़ाका, अर्जुन ने तुम्हें पत्नी के रूप में देख लिया है, इससे विवाह कर लो, ये मेरी आज्ञा है। गुड़ाका ने कहा, ये 16,000 8 रानी रखे, मुझको रखने में क्या तकलीफ है? बोला 8 रानियों का हरण कर करके लाया हूँ। 16,000 लड़कियों को नरकासुर ने बंदिश कर दिया था, उनको विवाह से वापस लेके आया हूँ। जब उनको छुड़ाया, कहाँ? नीलगिरी पर्वत पे। कहाँ? आसाम के नीलगिरी पर्वत पे बांध कर रखा था नरकासुर। वहां जाके श्री कृष्ण भगवान ने जब चक्र चलाया तो वो गंदे स्थान पे चला गया, चक्र काटा। इसे नरक चतुर्दशी के दिन स्नान करते हैं। नरक चतुर्दशी के जैसे उसका
मर्दन किया, भगवान श्री कृष्ण पहाड़ के अंदर से, गुफा के अंदर से आवाज आई कि बचाइए बचाइए। पहाड़ खुला, 16,000 लड़की लोग नतमस्तक होकर सामने पड़ गई। कृष्ण भगवान बोला तुम लोग कौन हो? बोले ये नरकासुर हम लोग को पकड़ पकड़ के लाके बंद कर दिया है। बोला जाइए अपने अपने घर जाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले ये द्वापर, कन्याएं बोली ये द्वापर है, कलयुग नहीं है, आज इसके संग कल उसके संग। आप जिस चक्र से काटे हैं नरकासुर को, उससे हम लोग काट दीजिए ताकि हम लोग स्वर्ग सिधार जाए, वरना अगर हिम्मत है, साहस है तो आप विवाह कीजिए। भगवान श्री कृष्ण सबसे गंधर्व क्या बोल, वृंदावन बिहारी लाल की मजबूरी में उन्होंने साथ दिया श्री कृष्ण भगवान। और बुढ़ाका को बोला कि जब भी कहीं मेरी कथा हो, बुढ़ाका ने कहा जब भी भगवान की प्रवचन कथा होगी मैं लोगों में प्रवेश कर जाऊंगी। कहां? जहां लोगों को उबासी आएगी, यानी हम लोग कहते हैं जम्बाई। अभी माँ को 2 बार उबासी आया, आपके पीछे बैठी 2 बार, यानी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, राम का स्वरूप, विष्णु का स्वरूप विद्यमान है यहाँ प्रवचन में, शास्त्र में, मंदिरों में, कहीं भी चैतन्य रूप से विराजमान है। इसलिए उनको बासी आई। कहने का अर्थ है कि भगवान की प्राप्ति कब होती है? जब मन में आस्था हो। आस्था होगा तभी आपकी अस्थि पवित्र होगी, गंगा में जाएगी तो आपको मुक्ति मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गंगा में अस्थि डाल दे तो मुक्ति मिल जाएगा। आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, अंग अंग में श्री राम का वास होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन सुनाने के बाद में हमारे प्रवचन करता आ गए हैं, आनंद लेके सुनिएगा। एक भजन गाएंगे, एक भजन। Namo
दूसरा है दूसरा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक बिरज में मक्खन चुराते, एक बरद आके लगाए। एक बिरज में मक्खन चुराते, एक बरद आके लगाए। दोनों हैं अनुपम बालक, दोनों हैं अनुपम बालक, दोनों ही महान, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम बोलो बिहारी लाल की जय। अति सुंदर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सभी को बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। आपका भी बहुत धन्यवाद।